Hello, students. So, today we are going to cover the chapter number 6 of civics, that is, political parties. And as we people are living in a democratic country, so we understand the importance of political parties in a democratic structure. If we are living in a dictatorship, then we know that dictator would never allow to organize or to set up a political party. He would not give any kind of freedom to the people so that they can raise their voice against him. तो डेमोक्रेसी की जो खासियत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज लाइंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज। और हमें पता है कि डेमोक्रेसी में का जो सबसे बड़ा अगर हम उसको डिफाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माने तो वो ये है कि इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर representatives, टू इलेक्ट देयर representative थ्रू इलेक्शंस। तो जो इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो मेनली हम कहाँ से इलेक्ट करते हैं? वी आर मेनली इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स को हम वोट डाल के अपने एरिया से, अपने शहर से, अपने पर्टिकुलर रीजन से उनको चूज करके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, असेंबलीज में भेजते हैं। So, it means democracy which gives the freedom to the people to choose their representatives, and this is done through the election. And in a democracy, elections are mainly contested between the political parties. So now we understand that political parties are the foundation of any successful democracy. तो अब हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? इट इज ओनली अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर कि आप इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो छोटा सा वीडियो है वो सिर्फ इसको लेकर है कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सो दिस इज योर पेज नंबर 1 of this chapter. Why do we need political parties? So naturally it will explain to you the importance of political parties for any democratic system that I was even explaining to you in my introduction कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के सक्सेसफुल रन करने के पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का सक्सेसफुल काम करना, वो एक मेजर फैक्टर है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। तो why there is a need of political parties, this would be your first topic. Then you have to explain the meaning of political party. Political party हम किसको बोलते हैं? तो it is a group of organization in which people come together to contest election and hold the power. I am repeating it again. It is a group of people who come together to contest election and hold the power. So they have the people who are deciding to come together for contesting election, holding the power, running the government, and they have some common principles, they have some common ideology, they have some common policies for the welfare of the society. That's why they are coming together. So that you will explain the meaning or definition of political party. Then these are the three important components of political parties: the leader, active members, and followers, that we would discuss how these are three very important components for any political party. कोई भी political party होगी तो उनमें इन तीनों components का होना जरूरी है। तो आप वैसे ही देखिए, लीडर के बिना पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई ना कोई क्रिस्मेटिक लीडर होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। देन द एक्टिव मेंबर्स, दैट मीन्स लीडर की भी वैल्यू तभी है जब उसको फॉलो करने वाले उसके मेंबर्स भी होंगे। तो एक्टिव मेंबर्स, हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ना कुछ एक्टिव मेंबर जरूर होते हैं, तो वो उसका सेकंड कंपोनेंट है। और तीसरे हो गए फॉलोवर्स, आम आदमी जो कि सपोर्ट करते हैं, जिनको किसी भी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी समझ आती है, वो उससे कन्विंस होते हैं, तो दे बिकम द फॉलोवर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, जिससे उनका अटैचमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई वुड कंसिडर इट
take it the most important topic, that is the functions of different functions of political parties. एक political party क्या क्या function perform करती है, कौन कौन से अलग उसके काम है जिनमें वो इन्वॉल्व होती है, आपको ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं. इनफैक्ट 7 functions have been given, like the political parties contest elections. फर्स्ट फंक्शन, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनती है तो उनका जो मोटो होता है वो इलेक्शन लड़ना ही होता है और जीतना भी होता है. देन द नेक्स्ट वन इज द मेकिंग लॉज. Political parties, after winning, the candidates from these political parties, they make the law for their state or for their country to run it in a proper manner. Form the government, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ड्रीम हो गया कि वो किसी तरह पावर में आए. देन द रोल ऑफ ओपोजिशन, जिनका वो ड्रीम पूरा नहीं होता लेकिन फिर भी वो जीतते हैं सीट्स, देन दे विल प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. शेप public opinion, mold public opinion, influence the public opinion through the various methods, by organizing rallies, by taking the help of media. These are the various ways through which they try to mold or shape the public opinion in their favor. So this is fifth topic. Then the sixth one is the they will play the role of a they will be a kind of bridge between the people, common people and the government. वो कैसे, वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको बाद में. तो इस तरीके से ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका ये. देन द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेसेसिटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी. वो हम करेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अच्छा, इसमें एक तो आपको ये बताया गया है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया देर आर मेनली पॉलिटिकल पार्टीज आर मेनली बेस्ड on two categories. We can categorize them. One is the national party and second one is the regional party or state party. इसमें आपको ये भी समझना है कि हर कंट्री के अंदर उसके डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बेस पे वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है. मेनली इसमें आपको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है इन पार्टीज को. हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट कंट्री. तो जैसे हमारा देश जो है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चल सकता, 2 से काम नहीं चल सकता, यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. दैट इज़ वाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मेनली आप इसमें 3 पार्टी सिस्टम को के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. 1 पार्टी सिस्टम which is a kind of dictatorship that we can see in China, where only one party is there. Communist party is there which is running China. Whatever way it think that it would run the country for the betterment of people, अब वो चाहे dictatorship से करे या जैसे भी करे. तो first type is one party system, then the 2 party system or bi-party system. In some countries, there is an arrangement of bi-party system. The 2 most clear examples are, one is United States of America and second one is the UK, United Kingdom. That means we are talking about United Kingdom of Great Britain. तो ग्रेट ब्रिटेन में भी 2 पार्टी सिस्टम है ब्रिटेन के अंदर, और USA के अंदर भी 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम है. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि सबसे बेस्ट भी माना जाता है कि आप लोगों की चॉइस को सिर्फ 2 पार्टी तक ही सीमित नहीं रख सकते, लोगों की अलग अलग टाइम पे अलग अलग चॉइस हो सकती है. तो दिस इज द थर्ड अरेंजमेंट इन अ डेमोक्रेसी अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. तो जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टियां, वो 3 हैं या 30 हैं, वो सब मल्टी पार्टी सिस्टम में आएगा. एंड वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया where the multi-party system is there, where many national parties are also there, and at the same time many regional parties in different states, they are also running. तो ये 2 party system, multi party system and 1 party system हम उसको डिस्कस करेंगे. पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, अब धीरे धीरे पार्टीज को लेकर लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. एंड दिस पेज इज कंटेनिंग वेरियस इंफॉर्मेशन विच शोज दैट now in India people have become politically more aware
और वो उनके पार्टिसिपेशन के डाटा से पता लगता है कि कितने सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद आपको जनरल एक डिवीजन बताया गया पॉलिटिकल पार्टीज में। वन इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड देन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको हम स्टेट पार्टीज भी बोलते हैं। तो इंडिया में भी दो टाइप्स की पार्टीज हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑब्वियसली द पार्टीज विच आर फंक्शनिंग इन मोर देन वन स्टेट्स। ठीक है, जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में जिनका बेस है, अधिकतर वैसे तो 2 3 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उनकी पकड़ होती है, तो उनको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस दे देते हैं। हम का मतलब इलेक्शन कमीशन विल गिव यू द दिस पर्टिकुलर टैग दैट यू बिलोंग्स टू अ नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। तो आपको कुछ मिनिमम कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। आपको मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर उसको अपने आप को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस लेना है या वो रीजनल पार्टी है, एंड दैट विल बी गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस क्वालिफिकेशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसको नेशनल पार्टी का टाइटल मिलेगा। फिर डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप डिस्कस करेंगे ये भारत में इलेक्शन कमीशन ने किन किन को रिसेंटली नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया। तो इसमें आईएनसी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज बीजेपी, जो इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन में है, भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनके मेन आइडियोलॉजीज कौन कौन से हैं, विच आर द मेन आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, देन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, देन बहुजन समाज पार्टी। दिस इज द थर्ड पॉलिटिकल पार्टी विच हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम, मार्क्सिस्ट, सीपीआई एम, जो कि सीपीआई से अलग होके बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होके बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो मदर पार्टी मानी है, और इससे स्प्लिट होके 1964 में ये पार्टी हमारे सामने आई, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे सीपीआई हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उसके बाद नंबर 6 पे आपके सामने है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, विच इज रनिंग एक्टिवली इन महाराष्ट्र एंड इन गुजरात एंड इवन इन गोवा ऑल्सो। तो ये है, और इसमें अभी एक पार्टी का नेम मिसिंग है, जो आपको शायद, जिन बच्चों के पास नया एडिशन है उस बुक में आपको मिल जाएगा, वो आपके पास है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, द पार्टी बीइंग रन बाय ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल, और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उसका इन्फ्लुएंस है। तो उसको भी नेशनल पार्टी का जो है स्टेटस वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिला। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डिस्कस करना है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बीजेपी, विच इज़ अ रूलिंग पार्टी राइट नाउ, एंड द कांग्रेस, विच इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। और अगर सही तरीके से देखें तो यही दो बड़ी पार्टीज हैं भारत में, जो कि कई स्टेट्स में, काफ़ी स्टेट्स में जिनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इन्फ्लुएंस है वो गिनती के 2 3 स्टेट्स में ही है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ जो बेसिक कंडीशंस को पूरा किया, दैट इज वाई दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। उसके बाद आपको स्टेट पार्टीज के बारे में ब्रीफली बताना है कि किसको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एंड दिस पेज इज एक्सप्लेनिंग टू यू द वेरियस स्टेट्स पार्टीज वर्किंग और फंक्शनिंग इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे आपको हरियाणा में ये चश्मा आपको नज़र आ रहा है, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। उसी तरह पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल आपको नज़र आ रहा है। तो ये रीजनल पार्टीज हैं। महाराष्ट्र में आपको शिवसेना नज़र आ रही है, या आपको JDU नज़र आ रहा है बिहार के अंदर, या RJD नज़र आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, ये भी बिहार की पार्टी हो गई, या समाजवादी पार्टी जो है वो हमारे नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश में हो गई। तो ये सारी आपको सिंबल्स दिए हुए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और
इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट पार्टीज। आफ्टर दैट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द वेरियस चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज को हम अपनी डेमोक्रेसी का बेस मानते हैं, लेकिन उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेनली हेयर दे आर एक्सप्लेनिंग टू यू 4 मेजर प्रॉब्लम्स related to the political parties in India. The first one here, it has been explaining to you, the first challenge is the lack of internal democracy. इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो कैसे नहीं है, दैट वी वुड डिस्कस। Then the next challenge has been explained to you, the problem of dynastic succession. This is the second challenge of this one. The second challenge of dynastic succession, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है मनी एंड मसल पावर। दैट मीन्स रोल ऑफ मनी, ब्लैक मनी यू कैन कंसिडर इट, एंड द रोल ऑफ मसल्स मीन्स, मसल पावर्स मीन रोल ऑफ क्रिमिनल्स। तो इन क्रिमिनल्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और ब्लैक मनी या मनी का ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करना, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, दे कैन इवन इन्फ्लुएंस द वोटर्स इन देयर फेवर। ये हमारे पास अगला चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। और फिर ये जो लास्ट चैलेंज आपको दे रखा है, दैट इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। दे डू नॉट हैव अ क्लियर आइडियोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट चैलेंज विच वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। और मैंने आपको बता दिया ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेकंड वन इज द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद ये चैलेंजेस करने के बाद हम लास्ट में पहुंचेंगे हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्स। जब हमने चैलेंजेस देखा, या चैलेंजेस का मतलब है जब हमने प्रॉब्लम्स को देख लिया कि हमारे देश में इन पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी पीपल आर फेसिंग, तो उसको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर। हाउ द वेरियस सजेशंस थ्रू विच वी कैन रिफॉर्म अवर पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें 2 चीज़ें आपको समझनी है। एक तो वो कि जो ऑलरेडी स्टेप्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के, एक तो वो हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ये हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। इसमें सर्टेन स्टेप्स विच हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन इंडिया टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। एक तो आपने उसके बारे में बताना है, जैसे लेट मी highlight this word written in pink colors, that is defection. अब डिफेक्शन का मतलब होता है कि पार्टी छोड़ के इलेक्शन के बाद आप अपनी पार्टी को चेंज करके किसी नई पार्टी में चले जाओ, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। इस डिफेक्शन को, जिसको हम हिंदी में दल बदल कहते हैं, और डिफेक्शन जनरली पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो पैसे के लिए करते हैं या पावर के लिए करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लॉ पास किया हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये स्टेप्स ऑलरेडी वी हैव टेकन टू रिफॉर्म अवर पॉलिटिकल पार्टीज। तो कुछ तो वो स्टेप्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इन पार्टीज को सुधारने के। ये तो हैं इनिशिएटिव्स। और लास्ट में आपने बताना है कि आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं या आपके क्या सजेशन है यहाँ से, बिसाइड्स दीज steps taken by the legislature and the judiciary or election commission, what are the various suggestions you can give to reform the political parties? तो एक तो वो जो ऑलरेडी स्टेप्स लिए गए हैं, और एक आपके सजेशन जो अभी आप सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो सकता है कल को आपके सजेशन पे कुछ नया रिफॉर्म किया जाए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो दीज सजेशंस हैव बीन गिवन हेयर। तो अब आपने इनको एक्सप्लेन करना है। एक तो यही है, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको यहाँ बताए गए हैं।
इसके अलावा आप कितना पॉलिटिकली अवेयर हैं, कितना अच्छे और सजेशन दे सकते हैं, वो भी आप अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है आपका लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, और इसी के साथ आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे।